Hello everyone, my name is Aksha. I welcome you all on my YouTube channel Aksha Tutorials. So class 10th, today we are going to discuss start with a chapter named as light. It is such an mysterious or such an interesting topic to start. So the chapter light. So as you can see, there are varieties of the natural sources of light in our universe. The stars, the sun, it acts as the natural source of light, right? But there are also some artificial sources of light in our surroundings like bulb, tube light. These all act as the artificial sources of light. Light is actually something which makes visible or clearly distinct the differentiation of the objects from each other. If suppose we are sitting in a dark room and lights are off, then we will not be able to clearly see the objects, right? But if there is the light, then we can easily or clearly see all the objects in our surroundings. So light is such a mysterious concept that it has always been given a powerful impact on or grabs the attention of some scientists on it. Many of the theories, many of the questions were asked that where the light comes from, how the propagation of light takes place, what actually the light is. So there have been given many of the theories, and all the theories reflect light, but in the very different aspects, in the different situations. Let's going on to some history of light. अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो earlier there was a scientist named as Pythagoras. You must have heard about him, Pythagoras, but not in science and maths. Pythagoras theorem was given by Pythagoras. In the concept of light, he said that light actually comes from the eyes of a person and falls on the object. Suppose here is the person and here is the object. So light is falling from his eyes on this object. And the second thing he said, that light always travels in the straight line path. तो दो चीजें इसने कही, एक जो light है that is actually falling from the eyes to the object, and second thing that it is traveling in the straight line path. On his contradictory to his statement, there was another scientist named as Epicurus. He said he actually contradicted his statements totally opposite to it. He said that light is actually passing or traveling from the object to the eyes of that person. Are you getting my point? He said that light is actually traveling from the object to the eyes of that person. But second thing was totally similar, that it is actually traveling in the straight line path. So अगर हम इन दोनों थ्योरीज को कंक्लूड करके देखें तो we came to know that light travels in a straight line or in a straight path. Getting my point? And hence we used to call it as ray of light. This thing is very important, ray of light. What actually in other terms we can call the ray of light, we can also call the ray of light as rectilinear propagation of light. ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो. The term is rectilinear propagation of light. Now what the rectilinear propagation of light means? It means the ray of light. That means the propagation of light in the straight line medium, straight line path actually, that is called as rectilinear propagation of light. Suppose let's take an example. Suppose मैंने यहाँ पे कैंडल बर्न करके रखी है, यहाँ पे कैंडल है, it is burn, right? अब वो कैंडल जो है it will emit its light, right? It will emit its light on me, तो I can be easily visible. अगर सपोज हम दोनों के रास्ते में कोई चीज आ जाती है, सपोज मैं उसके आगे अपना हाथ रख देती हूँ, तो दिस palm will obstruct the path of the light because light will always travel in the straight line. वो light जो कैंडल से आ रही है वो यहाँ मेरे palm से कर्व होकर मुझ तक नहीं पहुँचेगी because it is traveling in the straight path. हो सकता है वो मेरे
पाम का शेडो पीछे फॉर्म हो, लेकिन वो इसको क्रॉस नहीं कर सकती. It will travel in the straight line. So this straight line is called as rectilinear propagation of light. I hope it is clear. Okay. Later on in the 17th century, there is another scientist which was named as Huygens. Huygens said that light is actually in the form of a wave or a vibration. Yes, he said that light is in the form of a wave or a vibration. It fills the empty spaces between the objects. Then afterward there came the scientist after Huygens, that was Newton. अब न्यूटन के बारे में किसको नहीं पता, सबको पता है. तो न्यूटन said that light is a particle. अब समझते जाओ सारी बातें ध्यान से. हाइजन ने कहा जो लाइट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ वेव. न्यूटन ने कहा जो लाइट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टिकल्स. दे बोथ वर नॉट रॉन्ग. They both were right. Light can act as a wave. Light is in the form of particles. These both statements are totally correct. But depending upon the situations, on the various experiments. After Isaac Newton, in the 19th century, there is another scientist named as Thomas Young. 18th century की बात करिए, there was a scientist Thomas Young. He demonstrated some experiments on the phenomenon of interference and diffraction. So in his experiments he said that light, अब ये experiments क्या होते हैं हमने उस डिटेल में नहीं जाना है, बट उसने कुछ अपने experiments किए थे on the basis of diffraction and interference, जिसमें उसने ये कहा था interference not interference. इसमें उसने ये कहा था जो लाइट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ वेव. तो हाइजन की बात आ गई यहाँ पे. हाइजन ने भी तो यही कहा था जो लाइट है दैट इज अ फॉर्म ऑफ वेव. इसने भी अपने एक्सपेरिमेंट से यही कंक्लूड किया जो लाइट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव. अब इसके बाद देयर अगेन कम ओवर द नेक्स्ट न्यू थ्योरी दैट वाज क्वांटम थ्योरी. इट इज आल्सो वेरी फेमस थ्योरी. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम थ्योरी इसने कहा जो लाइट है इट इज एन एनर्जी दैट इज फॉर्म्ड बाय स्मॉल पैकेट्स. एक तो इसने क्या कहा, लाइट इज एनर्जी दैट इज फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल पैकेट्स, और उन पैकेट्स को इसने नाम दिया फोटोन्स. बच्चे वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट. तो उसने कहा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आती है लाइट, एंड दैट स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स आर कॉल्ड एज फोटोन्स. अब इसने क्या कहा क्वांटम ने, पार्टिकल है ना, छोटे छोटे पैकेट्स. वो पार्टिकल के बारे में किसने बताया था, न्यूटन ने. मतलब न्यूटन भी ठीक कह रहे. समझ रहे हो बात. वही चीज़ें दोबारा नेक्स्ट थ्योरीज में भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ एक्सप्लेन किया. तो कोई कह रहा है लाइट इज अ रे, कोई कह रहा है लाइट इज अ वेव, कोई कह रहा है लाइट इज अ particle, which all are actually correct. Afterward, in fact, in 1860s, there is also another scientist. Let me tell you about that as well. There has been another scientist in approximately, I think, 1860s. Yes, 1860s. There was another scientist named as James Maxwell. Now Maxwell आपके आगे चैप्टर में भी आएगा. देयर इज अ चैप्टर इन योर सिलेबस मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. उसमें भी इसकी थ्योरीज हैं. अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, मैग्नेटिक और करंट, दो फील्ड्स हैं. मैक्सवेल ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइट इज एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये क्या चीज़ है भाई. तो मैक्सवेल ने कहा जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है दे बोथ आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल. सपोज दिस इज शोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर रहेंगी, थ्रू विच द लाइट विल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Are you able to understand? उसने कहा there are two fields which are in the perpendicular to each other and through which
the electromagnetic waves are traveling, alright, they are propagating forward through the presence of this electric field and magnetic field. That electromagnetic waves are light. ये मैक्सवेल का कहना था. थोड़ा सा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जानते हैं. उसने कहा इसमें दो चीज़ें हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के लिए हम थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? आपने बहुत सारे रेडिएशंस के बारे में शायद सुना हो. बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड वेव्स, कॉस्मिक रेस. इन सभी दे ऑल आर फॉर्मिंग द होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इसमें आती हैं ये सारी रेडिएशंस. इन सभी रेडिएशंस में देयर इज अ नैरो रेंज ऑफ वन स्पेक्ट्रम विच इज कॉल्ड एज विजिबल स्पेक्ट्रम. अच्छा ध्यान से समझना, विजिबल स्पेक्ट्रम, इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी रेडिएशंस हैं. उनमें से कुछ रेडिएशंस, कुछ रेंज है ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम. विजिबल जिसको देखा जा सकता है. तो एक्चुअल इट इज द विजिबल स्पेक्ट्रम विच परसीव्स द ह्यूमन आई. जो भी लाइट इस विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल कर रही है दैट इज विजिबल. हम जो भी चीज़ें देख पा रहे हैं दैट इज एक्चुअली लाइंग, दैट इज रेंजिंग इन दिस विजिबल स्पेक्ट्रम. अगर कोई यूवी रेडिएशंस में कोई चीज़ है तो वो हम उसको नहीं देख सकते विद आवर नेकेड आइज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो लाइट जो है दैट इज रेंजिंग in the visible spectrum that can be perceived by the human eyes. Is it clear? Okay. तो ओवरऑल अब देखा जाए बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा. फाइनल कंक्लूजन्स क्या क्या निकले हैं? कुछ ने कहा लाइट इज अ रे, कुछ ने कहा लाइट इज अ वेव, कुछ ने कहा लाइट इज अ पार्टिकल, कुछ ने कहा लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब इसमें से ठीक क्या है? ये सारे के सारे ठीक हैं. लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज अ रे, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. आपके इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रे ऑफ लाइट एंड it is having some phenomenons of ray of light. That is what your full chapter name is, light, reflection and refraction. So these are the phenomenons of ray of light which we will discuss in this chapter. Before going on to these reflection and reflection of further chapter, let's discuss about the various properties of light. I hope आपको अच्छे से समझ आ रही है. एंड स्टिल बच्चे अगर कोई भी कंफ्यूजन है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, एनी क्वेरी और डाउट इज appearing, then you can simply ask any question in the comment section. So moving onwards, let's discuss about some properties of light. अगर हम properties of light की बात करें, what happens in its case? In the properties of the very first property, that light is dependent on electromagnetic radiations. भी बात की है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आ रही है, तो लाइट इज डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. जिसका कंक्लूजन ये था, रिकॉल कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कंक्लूजन ये था, जो लाइट है दैट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द नॉन मैकेनिकल वेव्स. दीज आर नॉन मैकेनिकल वेव्स. मैं आपको थोड़ा और ब्रीफ में ले जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए. वेव्स दो तरह की होती हैं. वन आर द मैकेनिकल, अदर वन आर द नॉन मैकेनिकल. मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स में क्या डिफरेंस है? मैकेनिकल वेव्स आर दोज विच रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल. जिन वेव्स को कोई मीडियम चाहिए टू ट्रेवल, दे आर मैकेनिकल वेव्स. ऑन द ऑपोजिट, विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, they are
नॉन मैकेनिकल वेव्स। जैसे पता नहीं मुझे आपको याद है कि नहीं, आपने 9th क्लास में देयर हैज बीन अ चैप्टर साउंड, तो साउंड वेव्स जो होती हैं दे आर मैकेनिकल। आपने उसमें बेल जार का एक्सपेरिमेंट शायद याद हो, नहीं याद हो तो अभी फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे साउंड वेव्स है, हम सुन सकते हैं ना, साउंड वेव्स आती हैं, वाइब्रेशंस के थ्रू आती हैं। दे आर द मैकेनिकल वेव्स बिकॉज दे रिक्वायर सम मीडियम टू ट्रेवल। अगर कोई मीडियम होगा ओनली देन दे विल बी एबल टू ट्रेवल एंड दे विल बी कम अप टू अस, राइट। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिन्हें किसी भी तरह का कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। ठीक, मैं आपको कह रही हूँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। ठीक, और साथ में हमने ये भी कहा जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसका मतलब लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है। इसको किसी भी तरह का कोई भी मीडियम ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम एट ऑल। हाउ लाइट एक्ट एज अ नॉन मैकेनिकल वेव? ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज sunlight is falling on the earth's surface and we are able to see all the objects, right? We are able to see the light. Clear? वो sunlight जो है that is coming from the space, और सभी को पता है space does not have any medium. space में तो किसी भी तरह का कोई मीडियम नहीं है. Still the light is traveling from sun to us. मतलब लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए. Now I hope it is understanding. Clear? समझ आ रही है बच्चे? अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलें तो ये तो हो गई, अगर ये this was the first property of light, that it is dependent upon the electromagnetic radiations. That means light is an electromagnetic wave. और electromagnetic waves कौन सी हैं? Which do not require any medium. तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए. अगर हम लाइट की प्रोपेगेशन की बात करें, हमने दो चीज़ें कही हैं. पहली, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ. नंबर 2, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. तीसरी, द नेक्स्ट थिंग इज इट इज हैविंग सम प्रॉपर क्वांटिटी. लाइक जो स्पीड ऑफ लाइट है इन केस ऑफ एयर, इन एयर it is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. जस्ट नोट इट डाउन. आपके आने वाले टॉपिक्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, अच्छा, अब लाइट किस तरीके से, कहाँ से, कौन से ऑब्जेक्ट से पास करती है, नहीं करती है, कितनी इंटेंसिटी से करती है? ऑन द बेसिस ऑफ दैट द ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स. Some are the opaque objects, some are the transparent objects, and some are the translucent objects. इन तीनों में डिफरेंस बता देती हूँ. opaque objects are those जिसमें से लाइट पास कर ही नहीं सकती. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल की थी, मैंने कहा था कैंडल सपोज पड़ी है, मैंने आगे हाथ रख दिया अपना, तो वो हाथ से पास करके नहीं ट्रैवल करेगी. तो वहाँ पे जो मेरा पाम है दैट विल ऑब्स्ट्रक्ट इट्स पाथ. तो माई हैंड इन दैट केस इज द ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट्स के केस में इट कैन कास्ट शेडो. ये मेरे पाम की शेडो बना सकती है. शेडो फॉर्मेशन कुड टेक प्लेस, बट इट विल नॉट क्रॉस थ्रू द ओपेक ऑब्जेक्ट्स. तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो हैं जिसमें से लाइट आर पार नहीं जा सकती. ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिनमें से लाइट आर पार जा सकती है. जैसे वाटर, अगर हम ट्रांसपेरेंट वाटर की बात करें तो वाटर कुड एक्ट एज अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन इजीली पास. हम देख सकते हैं आसपास. ओके, ट्रांसल्यूसेंट इज द केस फॉर एग्जांपल ऑयल. जैसे हमने बात की, ट्रांसपेरेंट वो है जिसमें से लाइट आर पार जा सकती है, ओपेक वो है जिसमें से लाइट आर पार नहीं जा सकती है. ट्रांसल्यूसेंट आर दोज ऑब्जेक्ट्स जिसमें से लाइट की इंटेंसिटी इज वेरी लो, मतलब वो पूरी तरह से पास नहीं हो सकती है. ऑयल के केस में लाइट पूरी तरह से पास नहीं होती है बिकॉज ऑफ इट्स लो इंटेंसिटी. उसकी इंटेंसिटी बहुत लो होती है. आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा है. इफ नॉट देन यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, सो विद दिस आई एंड अप माय टुडेज लेक्चर. This was all the basic, very fundamental concept of life, of light. Alright, I hope you do understand, and if you do like my video, then share this with your friends as well.
Keep watching, stay tuned for all the upcoming lectures. Thank you. Keep smiling.